Hi students, good morning. Hi students, good morning. In the last class we have discussed about the concept of probability. Now today we are going to solve the exercise. What is the exercise number 15.1? Exercise number 15.1 from NCERT. Clear? We are going to solve exercise number 15.1 from the NCERT books right now. Then the first question is oral questions. आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगी. You have text book. You can open your textbook and read the question number 1. What is the question number 1? Complete the following statements. There are few statements are given. In the given statements, there is fill in the blanks and something blah 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 and so on. Right now, so we have to complete the given statement. The first statement is what? Probability of event plus probability of not E. Probability of event plus probability of not E is equal to question mark. देखो बेटा, किसी भी वर्क का होना और ना होना दो ही स्टेप होते हैं भाई. या तो मैं खाना खाऊंगा या तो फिर नहीं खाऊंगा. अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं तो मेरा एक पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा. मतलब हैपन प्लस नॉट हैपन. याद रखो, हैपन प्लस नॉट हैपन इज इक्वल टू 1. हैपन प्लस नॉट हैपन इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस इवेंट हैपन, देन ई डैश मींस नॉट हैपन. मतलब अगर किसी इवेंट को ई से रिप्रेजेंट किया तो उसके इवेंट के ऊपर अगर मैं डैश लगाऊंगा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नॉट इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इज इक्वल टू 1. Clear? The first statement is completed. Now second statement. What is the second statement? The probability of an event that cannot happen is that cannot happen. The probability of an event that cannot happen. याद करो मैंने कल क्या बोला था बेटा, जो पॉसिबल नहीं है. कल लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि मिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर कमिंग एट योर होम विद इन 10 मिनट्स. यही बोला था ना मैंने, जो पॉसिबल नहीं था, दैट मीन्स इम्पॉसिबल. तो उसने पूछा बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. Probability of an event that cannot happen is 0, and such an event is called impossible event. Such an event is called impossible event. Clear? And the third statement is what? The probability of an event that is certain to happen, 100% fix. The probability of an event that is certain means sure event. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 1, and that is called sure event. Is that clear? And the statement number 4 is what? The probability of an event is greater than or equal to. Probability of an event is greater than or equal to. लास्ट क्लास मैंने ये भी बताया था कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट या तो 0 से बड़ा होगा और या फिर 1 से छोटा होगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Which of the following experiment have question number 3? That is the simple sum. Question number 3. You can solve. You can complete your question number 2 with the help of previous lecture. Probability 1. Probability का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया है उसके हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3.
Why is tossing a coin considered to be a fair coin of deciding which team should get ball at the beginning of the football game? फेयर कॉइन क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज जब हम टॉस करते हैं तो वी विल गेट अ परफेक्ट रिजल्ट आइदर हेड और बाय टेल, देयरफॉर इट इज नोन एज फेयर कॉइन. सिंपल वर्ड है. फेयर उसी को बोलेंगे बेटा जिसका काम परफेक्ट होगा. कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा. दो में से कोई एक ही मिलना है. जब हेड मिले या फिर टेल मिले, दोनों में से कोई एक ही मिलना है तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्या हो गया? फेयर कॉइन हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड फेयर कॉइन. Question number next. That is the question number 6. A bag contains lemon flavor candy only. A bag contains lemon flavor candy only. Clear? Malini takes out one candy. Malini takes out one candy without looking into the bag. Without looking into the bag. Clear? What is the probability that she takes out? What is the probability that she takes out? The first part is what? An orange flavor candy. An orange flavored candy. Second is what? A lemon flavor candy. Question is what? A bag contains lemon flavor candy only. Bag contains lemon flavor candy only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? बेटा बैग है, बैग के अंदर कौन सी कैंडी रखी है? लेमन फ्लेवर कैंडी. अब उसको कौन सी प्रोबेबिलिटी? मालिनी ने जब मैं बैग में हाथ डाला उसमें से क्या निकाला? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. पॉसिबल है? बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है और उसमें से आपसे बोला जाए कि आप ऑरेंज की फ्लेवर की निकालो तो क्या निकाल पाओगे? दैट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव नो मैजिक. हैव यू मैजिक कि लेमन फ्लेवर कैंडी में से ऑरेंज निकाल लो? दैट्स नॉट पॉसिबल ना. तो दिस इवेंट इज नोन एज impossible event. Impossible. Therefore, its probability is what? 0. Its probability is what? 0. Second part is what? A lemon flavor candy. बैग में बेटा लेमन फ्लेवर कैंडी रखी है तो जब हाथ डाल के आप निकालोगे उसमें से कैंडी तो आपको लेमन फ्लेवर ही मिलेगा. मतलब 100% फिक्स है कि आपको लेमन फ्लेवर ही मिलेगा. That is called sure event. That is what? Sure event. And its probability is what? 1. Is that clear? Question number 6 completed. बेटा ध्यान रखो, एक छोटा सा लॉजिक, कोई कुछ किया नहीं मैंने सिर्फ ये चेक किया पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं. अगर है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी है. राइट ना? बैग कंटेन्स व्हाट? लेमन फ्लेवर कैंडी. बैग में क्या है बेटा? लेमन फ्लेवर कैंडी है. उसमें से आपको क्या निकालना है? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी. पॉसिबल ही नहीं है, लेमन में से ऑरेंज नहीं निकलेगा. तो नहीं निकलेगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट. और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.
बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी, उसमें से निकालना भी आपको क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी. दैट इज 100% श्योर, दैट इज श्योर इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 1. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट? Question number 7. It is given that in a group of 3 students. It is given that, question ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा नहीं अब. It is given that in a group of 3 students, group of 3 students, right now, 2 students not having the same birthday. 2 students not having the same birthday is 0.992. 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Then question क्या बेटा? What is the probability that 2 students have same birthday? क्लियर बेटा? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक इवेंट फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1. ये बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1. हैविंग सेम बर्थडे, दैट इज हैपन 0.992. हैविंग नॉट सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, सॉरी, हैविंग नॉट सेम बर्थडे लिखा है, हैविंग नॉट सेम बर्थडे इज 0.992. तो 0.992 कहां पे आएगा? नॉट पे आएगा, दैट इज ई डैश. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992. दोनों को माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? एनी डाउट? Now we are going to solve question number 8. What is given in question number 8? What is given in question number 8? A bag contains 3 red balls and 5 black balls. ये बैग है बेटा, ये क्या है? बैग है. मान लो, एज्यूम कर लेते हैं बैग है, इसमें 3 रेड है और 5 क्या है बेटा? ब्लैक बॉल्स. A bag contains 3 red ball and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? पहला क्वेश्चन, what is the probability? What is the probability that the ball drawn is number 1 red, number 2 black. चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा. A bag contains 3 red and 5 black. तो पहला वर्ड आपके क्वेश्चन में दिमाग में ये आएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज नोन एज योर सैंपल स्पेस. क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज नोन एज योर सैंपल स्पेस. दैट मीन्स ये लिखोगे आप, सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट? सैंपल स्पेस क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? यही बोला था ना कि किसी भी वर्क को करने के जितने भी टोटल चांसेस हैं, बैग में से बॉल निकालने के कितने चांसेस हैं, बॉल निकालने का, मैंने कलर नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला रेड वाली भी बॉल है और ब्लैक वाली भी बॉल है.
अब उसमें से जो निकालना है, पुल अप करना है अपने को बेटा, हाउ मेनी चांसेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट 3 + 5 विच इज व्हाट 8। अब मैं पहला स्टेप सॉल्व करूंगा, मुझे क्या चाहिए, रेड, तो लिखूंगा क्या, लेट ए, सिंपल वर्ड में उसको नोटेट किया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। क्या लिखा बेटा मैंने, इतना स्टेटमेंट सब में लगभग लगभग रहता है, और ये आगे का जो गेटिंग तक सेम रहता है सब में, उसके आगे जो है वो क्या रहता है, आपका जो क्वेश्चन रहता है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, देयरफॉर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मींस व्हाट, रेड बॉल, तो नंबर ऑफ ए मींस नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल इसमें कितनी है बेटा 3, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ ए रिजल्ट कितना है बेटा 3 और नंबर ऑफ यस कितना है 8, तो फाइनल रिजल्ट इज व्हाट 3/8। सेकेंड पार्ट समझ में आया, फिर से ध्यान से सुन लो, पहला स्टेप क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट एज्यूम करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये सेम रहेगा सब क्वेश्चन में, उसके बाद जो आपको चाहिए वो लिख लो, रेड चाहिए था तो रेड बॉल लिख दिया, देन नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू व्हाट 3, नंबर ऑफ रेड बॉल इज व्हाट 3, नंबर ऑफ रेड बॉल के बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 3/8। इज दैट क्लियर? सेकेंड स्टेप, सेकेंड आपसे क्या पूछा उसने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, अभी ए एज्यूम कर चुके हैं तो ए नहीं एज्यूम करेंगे, अब क्या एज्यूम करेंगे, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, देखो सेम लिखा कि नहीं लिखा, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, अब आपको क्या चाहिए था ब्लैक, तो ये लिख दिया मैंने क्या, ब्लैक बॉल। अब नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर नंबर ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ बी मींस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, फिर से देख लो इसमें ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज व्हाट 5 and number of yes is what 8, so final answer is what 5/8, that's clear, is that okay? If you have doubt you can ask. Next sum, question number next question is what beta, question number 9, a box contain 8 red marbles, 5 ये बॉक्स है, that is your box, a box contain 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. What? A box contain 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken from the box. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Red, white, what is the probability of, पहला क्या बेटा रेड, दूसरा क्या व्हाइट, थर्ड नॉट ग्रीन, चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब इस बॉक्स में से मार्बल निकालने के कितने चांसेस हैं, तो जितने मार्बल उतने चांसेस, 3, 8, 4, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 3 + 8 + 4, कितना हुआ 15 सैंपल स्पेस। उसके बाद अब पहला सम सॉल्व होने जा रहा है। फर्स्ट सम आपको क्या चाहिए रेड,
तो लिखोगे क्या, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड, राइट ना, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, डन। अब रेड मार्बल है कितने बेटा, इसमें देख लो जरा, बॉक्स में देखो, तो क्या आंसर आएगा, 5 रेड मार्बल्स है ना, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस अपॉन 5 अपॉन 15, कट करो बेटा, दैट इज 1/3। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या पूछा बेटा उसने, व्हाइट मार्बल, तो फिर से लिखो, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। अब बेटा व्हाइट मार्बल अगर चाहिए तो फिर बॉक्स की तरफ ध्यान दो अपना, ये बॉक्स देख रहे हो ना, ये वो है जादू का पिटारा, सब कुछ इसी बॉक्स में से निकल के आ रहा है। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितने हैं इसमें, कितने, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, व्हाइट मार्बल 8 है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, क्लियर ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बी, कितना, नंबर ऑफ बी आया है बेटा अपना 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट, 15, तो 8/15 इज आंसर। एंड द थर्ड स्टेप, व्हाट इज थर्ड स्टेप, बोलो, आगे का मुझे नहीं आता, भूल गया, चलो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं आता तो तुम सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कर लो, करोगे, कर लो यार, चलो अब मैं ही बता देता हूं, क्या चाहिए आपको, नॉट ग्रीन, तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। अब बेटा नॉट ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन नहीं चाहिए, क्या बोला, ग्रीन नहीं चाहिए, तो इस डिब्बे में से फिर उसी जादू के पिटारे पे आए, अलादीन का चिराग है ये अपना, इसी डिब्बे में से नॉट ग्रीन निकालो, मतलब ग्रीन को छोड़ दो, बाकी क्या क्या बचा, रेड और व्हाइट, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू रेड प्लस व्हाइट, रेड कितने हैं बेटा 5 और व्हाइट कितने हैं 8, तो नंबर ऑफ सी is equal to 5 plus 8 is equal to 13. Therefore, probability of C is number of C upon number of yes is equal to 13/15. That is your answer. Clear ना? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर डाउट रहेगा तो बताना आप. Next sum, question number 10. What is question number 10? What is the given in question number 10? A piggy bank. Question number 10. A piggy bank contains 150 पैसा coin. देखो वैल्यू और उसका क्वांटिटी, क्लियर ना. 50 पैसे की 100 कॉइन है. 50 पैसे की कितनी कॉइन है बेटा 100 कॉइन. पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के 50 कॉइन्स हैं. 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स. 22 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं बेटा 20 कॉइन्स. एंड 10
₹5 कॉइन, ₹5 के 10 कॉइन्स है. If it is equally likely that one of the coin will fall out from the when the bank is turned outside upside down, what is the probability that the coin will be? Then find probability. Then find probability of what? पहला स्टेप 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन. सेकेंड स्टेप will not be ₹5 coin, will not be ₹5 coin. 2 क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्लियर ना? पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? इट इज ऑफ 50 पैसा कॉइन. सारा गेम किसका है? कॉइन का. ये हो गया हमारा डिब्बा, बॉक्स. यही बॉक्स बनेगा. अब अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो सबसे पहला रूल का पहला स्टेप, सम सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या था? सैंपल स्पेस. तो सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे बेटा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे बेटा 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितना हुआ? 180. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट? 180. अब पहला स्टेप 50 पैसा कॉइन, उसको क्या एज्यूम करेंगे? ए. तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन, देयरफॉर नंबर ऑफ ए. चल बेटा डिब्बे पे आ जाओ, अपने बॉक्स पे. 50 पैसे के कितने कॉइन है? 50 पैसे के 100 कॉइन्स है. देख लो, 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ ए इज व्हाट? 100. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 100 अपॉन 180. 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा, 2 9 जा, देन रिजल्ट इज व्हाट? 5 अपॉन 9. एंड नाउ सेकंड पार्ट, will not be ₹5 coin. तो पहले तो लिख लो, let B be the event of getting not ₹5 coin. क्या नहीं चाहिए बेटा? ₹5 की कॉइन नहीं चाहिए, राइट ना? will not be of ₹5 coin. अब अगर will not be of ₹5 coin बोल दिया तो ₹5 की कॉइन ये है, इसको आप क्या कर दो? छोड़ दो. आपको ₹5 की कॉइन नहीं चाहिए ना, तो ₹5 की कॉइन को क्या कर दो? लेफ्ट कर दो, फॉरगेट इट. तो बाकी के कितने बचे? 170. देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20. 100 plus 50 plus 20, that is what? 170. Therefore probability of B is equal to number of B upon number of yes, that is what? Number of B is 170 and number of yes is what? 180. Cut करेंगे बेटा, that is 17 upon 18 is our answer. Is that clear? If you have any doubt you can ask me, okay? Okay beta, bye bye and listen carefully. That's the most important thing is what? कि बेटा मैं कितना पढ़ाता हूं आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मैथ इज द ओनली सब्जेक्ट विच डिपेंड्स ओनली अपॉन योर प्रैक्टिस. क्लियर ना? तो आपके लिए काम क्या है कि जितने सम्स मैंने बताए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी सम्स आपकी एक्सरसाइज में है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करो और उनको आप मुझसे जो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप हमसे पूछो, शेयर करो. आई विल कॉल यू, ओके? आप हमको फोन करो, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. आप हमको मैसेज करो, आपके पास हमारा नंबर अवेलेबल है बेटा. ओके, इज दैट क्लियर? बाय बाय.